shift our focus to some other stories coming our way. Union Home Minister Amit Shah is set to visit Tripura on June 4th and 5 for a crucial review of border security along the India-Bangladesh frontier. According to officials, Shah will arrive in Agartala on Thursday evening after chairing the 73rd plenary session of the North Eastern Council in Shillong. During his stay, the Home Minister will chair a high-level meeting with senior officials of the Border Security Force and other security agencies to assess the overall security situation and review border management measures. Joining us on the broadcast is my colleague Nibir Deka, who has more information on this front as well. Nibir, the Union Home Minister Amit Shah is all set to visit Tripura on June 4th and 5th. What's on the agenda of this visit? Will arrive in Agartala for a 2-day visit. During the visit, he is set to attend the foundation stone laying ceremony of the Pushpa Banta Palace Hotel. Also, he will visit a border outpost at Lankamura, and also he'll held a high-level meeting with the state and the central security officials. A high-level administrative and security meeting has also been organized by the state government in connection with his visit. So these are very crucial matters that he will be taking care of in his visit to review the border security in Tripura, and also to chair the NEC plenary session, which is going to be held in Shillong. And all these are very crucial aspects as far as border security and development of Northeast is concerned. And in his visit to the Lankamura border outpost on the Indo-Bangla border in Tripura, and interaction with the BSF personnel being stationed there is going to be very crucial, as we know that the center has been pushing for maintaining absolutely 100% security on the Indo-Bangladesh border, be it in Bengal, be it in Tripura. So his visit is seen in light of these measures being taken recently to protect the borders. Absolutely. Thank you so much, Nibir, for all those details. In fact, we have some more inputs coming our way. In North 24 Parganas, West Bengal, a large group of alleged Bangladeshi infiltrators has in fact gathered at the Hakimpur border checkpost seeking to return to Bangladesh. Hundreds of men, women and children, many carrying bags and belongings, were seen assembling near the BSF checkpost in the Bashirhat subdivision. This fresh rush comes amid the new West Bengal government's intensified crackdown on illegal immigration under the detect, delete and deport policy. My colleague Rainik Datta is back with us on the broadcast for more information on this front. Rainik, पिछले महीने से हम देख रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पे लाइन अप कर रहे हैं क्योंकि वो वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। आज भी हमें जो विजुअल्स आ रहे हैं हकीमपुर से, यहाँ पर बहुत लोग, मेन, विमेन, चिल्ड्रन सब इकट्ठा हुए हैं बीएसएफ चेक पोस्ट पे और वेट कर रहे हैं कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाए वापस से बांग्लादेश। हाँ, एक देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जब से डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये नीति अपनाया गया है, उसके बाद से बांग्लादेशी जो लोग हैं वो लोग बांग्लादेश में जाने के लिए लगातार जीत कर रहे हैं। इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में गुजर थे और वो लोग ही अभी बांग्लादेश लौटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हकीमपुर बॉर्डर में लगातार जीत जो है वो देखते हुआ नजर आ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो पिछले महीने से ये सामने आ रहा है बॉर्डर पे लगातार जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स थे, बांग्लादेशी जो थे, वो लोग भीड़ कर रहे हैं कि वो उन लोगों को बांग्लादेश में भेजा जाए, बांग्लादेश में ट्रांसफर कर दिया जाए। एक्शन रखते हुए वो लोग इधर आ रहे हैं। अब नॉर्थ 24 परगना में इंडिया में एक डिटेंशन कैंप भी तैयार किया गया है। होल्डिंग सेंटर पर करीब 500 के ऊपर लोग बांग्लादेशी अभी भी उधर मौजूद है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि सब लोगों का डेटा जो है वो कलेक्ट करके बीएसएफ के हाथ में दिया जा रहा है। बीएसएफ के साथ बीजेपी के जो फ्लैगमेंट हो रहा है उस दौरान ही बीएसएफ के हाथ में वो डेटा सबमिट किया जा रहा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से डेटा वेरिफिकेशन के बाद इन लोगों को बांग्लादेश में वापस भेजने का जो प्रक्रिया वो किया जाएगा, ऐसा खबर है। रैनिक, ये भी कहा जा रहा है कि जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं
वहाँ पर भी ये इनलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन किया जाएगा, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे और उसके बाद बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके साथ बातचीत करके इनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली कितने और होल्डिंग सेंटर्स ऐसे सेटअप हुए हैं, वहाँ पर क्या कार्रवाई जारी है, इसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं। हाँ एकदम देखिए देखिए जो जितना भी बॉर्डर एरिया है उस एरिया पर एक एक करके होल्डिंग सेंटर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया गया है। हाकिमपुर बॉर्डर में जो लोग आ रहे हैं, जो बांग्लादेश जाने के लिए आ रहे हैं, उनको पहले तो उन लोगों को ले जाया जा रहा है तेतुलिया का जो होल्डिंग सेंटर तैयार किया गया है उस जगह पर जाने के बाद ही उनको उधर रखा जा रहा है। उनका डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है, कहाँ से आया था, कब आया था, किस पर्पज से आया था, कौन सी जगह में रुका था, पूरा जो डिटेल्स वो डिटेल्स गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद ही ये जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से। बीजेपी के साथ जब फ्लैग मीटिंग हो रहा है, फ्लैग मीटिंग के दौरान बीएसएफ की तरफ से बीजेपी को ये डेटा दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करके बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को वेरीफाई करने के बाद इन लोगों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। तब तक वो लोग होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, शिलीगुड़ी, इसके अलावा अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, ये जो बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया पर लगातार जो जिस तरीके से बांग्लादेशियों का भीड़ हो रहा है, इसी को देखते हुए जो होल्डिंग सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। जैसे कि नॉर्थ चौबीस परगना से हकीमपुर बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर तेतुलिया एरिया पर ये होल्डिंग सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। इसी तरीके से हर एक जगह पर होल्डिंग सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको इस होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। इसके बाद डेटा वेरिफिकेशन के बाद ही उनको बांग्लादेश में वापस भेजा जाएगा। जी धन्यवाद आपका रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए।